Well, the chapter is pricing strategies. In this chapter, we will discuss what price is, moreover, what could be possible pricing strategies. Well, the chapter is pricing strategies. In this chapter, we will discuss what price is and what could be possible pricing strategies. Well, the chapter is pricing strategies. In this chapter, we will discuss what price is, moreover, what could be possible pricing strategies. Well, the chapter is pricing strategies. In this chapter, we will discuss what price is, moreover, what could be possible pricing strategies. So, the chapter is pricing strategies. In this chapter, we will discuss what price is and what are the possible pricing strategies. Well, coming towards what price is the amount of money charged for a product or service. जब भी हम कहते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस क्या है, coming towards what price is the amount of money charged for the product and service. किसी भी product या service को buy करने के लिए what we pay, that actually price is. Price is the major factor that affect the buyer choices. Moreover, it is the most flexible marketing mix element. प्राइस मार्केटिंग 4 P's अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, देन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इन 4 P's में से मोस्ट फ्लेक्सिबल जो एलिमेंट है दैट इज़ प्राइस. प्राइस को हम इजीली चेंज कर सकते हैं. व्हेन वी से चेंज कर सकते हैं, इट मीन्स वी कैन इवन रिड्यूस द प्राइस, सस्टेन द प्राइस और इंक्रीज द प्राइस. If we talk about major pricing strategies, then it includes the customer value based pricing, second cost based pricing, and last is competition based pricing. Well, the first pricing strategy is customer value based pricing. As the name indicates, we are going to set the price based on the value perception. In this, what we do, the company first of all identify the customer need and the value in the mind of the customer. Then it set the price. Value based pricing is a step by step process. First of all, again, company assess the customer need and value perception. Then the next step is companies set target price to match customer value. In the third step, what company do, it drive target cost that can be incurred. In the fourth step and the last step, it design product to deliver desired value at target price. So up till now we have discussed वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में सबसे पहले कंपनी कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करती है और उसकी वैल्यू परसेप्शन देखती है कि उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है कस्टमर के लिए या कस्टमर के माइंड में. जब कंपनी ने कस्टमर की नीड को भी असेस कर लिया, उसकी वैल्यू परसेप्शन का भी आइडिया होगा, फिर कंपनी उस प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करती है. अब वो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मैच कर रही होगी कस्टमर की वैल्यू के साथ. थर्ड स्टेप में कंपनी क्या देखती है कि उसको इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होगी, कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. और जब कंपनी ने प्राइस भी आइडेंटिफाई कर ली, उसकी कॉस्ट भी एनालाइज कर ली, तो फाइनली कंपनी मूव करती है टूवर्ड्स प्रोडक्ट डिज़ाइन. So if we talk about the example of customer value based pricing, then we have the example of GoToMeeting. GoToMeeting basically ये एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इस ऐप की प्राइस को सेट करने के लिए इनके जो को फाउंडर हैं जिनका नाम है जेम सैमिक, उन्होंने बताया, डीपली बताया कि हमने इसकी प्राइस कैसे सेट की है.
तो अकॉर्डिंग टू हिम कि जब उन्होंने गो टू मीटिंग जो कि एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है उसकी प्राइस जब सेट करनी थी तो उन्होंने इंटरव्यू किया अ डजन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। उन्होंने सो मैनी पोटेंशियल कस्टमर से इंटरव्यू किया ताकि वो ये जान सकें कि इस ऐप से कस्टमर क्या वैल्यू या क्या बेनिफिट रिसीव करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने अपने पोटेंशियल कस्टमर से इस ऐप से रिलेटेड इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बताया कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो ये कहते हैं वी वांट टू सेव आर कॉस्ट, हम अपनी कॉस्ट है उसको सेव करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। देन वी वांट टू मिनिमाइज द टाइम, हम जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको मिनिमाइज रिड्यूस या एलिमिनेट करना चाहते हैं। देन जो किसी कॉम्प्लिकेटेड ऐप को यूज़ करने से जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो जब उनके को फाउंडर जिम सैमी को कस्टमर की वैल्यू का या कस्टमर को इस ऐप से जो बेनिफिट चाहिए थे उसका आइडिया हो गया तो फिर उन्होंने अपने गो टू मीटिंग की प्राइस सेट की लाइक $49 और उन्होंने इस ऐप की प्राइस फ्लैट रेट प्राइसिंग यूज़ की है। मींस वो उस टाइम पे इंडस्ट्री लीडर थे, इनोवेशन लेके आए थे, इसलिए उन्होंने उसकी प्राइस फ्लैट $49 रख दी। फिर उन्होंने जिम सैमिक ने ये भी बताया कि जो हमने प्राइस सेट की है असल में हमने प्राइस को प्रोडक्ट का पार्ट ही बना दिया और प्राइस ऐसे सेट की है जो कस्टमर की वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रही। सो स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की एक और एग्जांपल को लें देन वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ बू बैले। बू बैले असल में एक मार्केटिंग ऑथर है। उन्होंने अपनी बुक राइट डाउन की और उन्होंने 10x स्ट्रेटजी अप्लाई की। 10x स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि whatsoever the price of the product is we have to give 10 multiple of 10 benefit to our customers कि जो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करने से कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए वो 10 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी बुक की प्राइस है लेट्स सपोज $20। उनकी बुक की प्राइस $20 थी और उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन अफेक्टिव स्पीकर बनना चाहता है और वो इस बुक में से 1 और 2 टिप्स को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और बन जाएंगी। ठीक है, तो जब उस पर्सन के पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, ज़्यादा उसकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, उस पर्सन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको जो बेनिफिट होगा वो $20 से तो सो मेनी टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ परसुएसिव स्पीकर तो फिर क्या है कि अगेन बुक की प्राइस तो क्या है $20 है और अगर वो पर्सन इस बुक के अगेन 1 और 2 टिप्स को अप्लाई कर लेता है तो जो उसको बेनिफिट मिलेगा उस पर्सन को वो $20 से बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा।